This is not. अब हो गया, चैट पे आ जाए। अब करके जाना गनीउल्ला तुमको तो। जी मैम। पोस्ट आ रहे स्टूडेंट्स अटेंडिंग। कितने 18 आ रहे? हमारी आई रही है ना? जी जी। मेरी पसली में दर्द हो रहा खुद। ये हो गया? जी मैम। किधर है बच्चे? बिकॉज बिफोर यू एंटर रॉन्ग टाइम। कौन है ये? ये मैडम जुबैदा है। आई विल आंसर उसको बताना जरा कि कहाँ प्रॉब्लम था, तो बताना जरा इसको, ये बताना जरा प्लीज। इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम इन एंटरिंग। उसको ना बता, चलिए भी शाम तक आएगी। नहीं, मैं उसने सिर्फ ये कहा था कि ये ब्लिंक। आई एम गनीला टेल। मैं बता दिया। बताओ मैम, आई एम विद मैडम, देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम द मैडम साइड। उसको क्लियरली लेके बाहर कहानियाँ फिट करन, फिर मैडम ने बहुत कर दियो मैन्युपुलेट। Tell her it was not a wrong enter by Madam Troya. क्या लिखा है? There was मैडम an issue in webinar link. ठीक है, हाँ, थैंक यू। हेलो, Khatija present. Hello, hello. Can you please hear me? Hello, Khatija. My voice is clear to you people? Hello. Khatija, reply me. You are showing you are present, but tell me my voice is clear to you. I'm here. Can you hear me? Hello, Ghazala, Khatija. Okay, so remember the last topic. We started from the self-directed learning. So it's a bad luck because I cannot take the feedback from your side only by messages, and that is take a time consuming. So I really urge to take the feedback from your side. Okay, Arifa, thank you so much. You learn from the last lectures. So clearly understand by the self-directed learning. Hello. So we left our topic from the characteristics of the self-directed learners. Okay, ठीक है, yes. Arifa, thank you so much.
So we already started from I teach you people strategies for self-directed learning, motivating today's learner. So I clearly described you people in detail. Objective of self-directed learner mean concept. I teach you people concept, complete concept of self-directed learning, and the 14 characteristics, which I teach you people a few, and the rest was left. So I will continue from that characteristics. So 14 characteristics of the intelligent behavior. If you want to become a self-directed learner and explore your intelligence behavior, you need to pursue the 14 characteristics of the adult learners. So the first one, as I discussed with you people, is the persistence. Persistence means you need to stay on task. Persistence, manage impulsivity, listen with the understanding and empathy, cooperative thinking, social intelligence, flexibility of thinking, metacognitions, accuracy and precision, and a sense of humor, questioning, drawing on past knowledge and experience, risk taking, using all the senses, clarity, wonderment. Clear? So as I discussed with you people is persistence. Persistence means you need to stick on the task until completed. Mean does not give up easily, has a systematic method of analyzing a problems. Mean you are not need to be frustrated or easy to quit that I am not able to do the task. You need to take the persistence in your behavior, go systematic, analyze the problem, what should be the first, how to collect the information, how we need to set the priorities, where to begin, where to stop, and how much step to perform, and then data needed, and what information is requiring to stay on to solving the proper topic to stay persistence. Clear? Hope. So as I told you people, persistent quotations, nothing in the world can take the place of persistence. कोई चीज भी दुनिया में persistence को replace नहीं कर सकती. Talent will not, even talent. Nothing is more common than unsuccessful man with talent. Even how much person is talented, if the person is unsuccessful and he has a lot of talent, then that is useless. Genius will not, unrewarded genius is almost proverb. ने देखा है कि without achievement genius is nothing. You can say only kahavat, proverb. Persistence and determination alone are omnipotent. Mean is the power and force. What? Persistence and determinations. Calvin कीजिए according to है. So managing impulsivity which is very important. ठीक है, किसी भी चीज को ऐसे ही मतलब विदाउट थिंकिंग, जब हम किसी चीज को इमोशनल लेवल पे हम उन चीजों को ले लेते हैं, यानी कि डूइंग विदाउट एक्टिंग, विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग. सो थिंक बिफोर एक्टिंग. आपने हमेशा सोचना है कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना. फॉर्मिंग अ विजन्स ऑफ प्रोडक्ट, विजन्स करें, गोल सेट करें, डेस्टिनेशंस बिफोर बिगनिंग. किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, किसी भी आप चीज को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने इमीडिएटली क्या करना, एकदम से रश नहीं करना. आपने स्लोली इसको थिंक करना है, उसके बारे में उसके गोल सेट करने हैं. किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमेशा आपने अपनी इम्पल्सिविटीज को, अपनी इम्पल्सिस को है वो कंट्रोल करने की जरूरत होती है. मीन व्हाट वी हैव टू लर्न टू डू, वी लर्न बाय डूइंग. दिस इज सेड बाय अरिस्टोटल. So listening with understanding and empathy mean always listen. Good listener is always good implementer. Sometimes we are showing ourselves. Hello.
Who left the room? How many students are present now? Currently, I can see Mubin, Arifa, Rizala, 14. Okay, so once we are a good listener, we always are good implementers. And good implementer is always good decisions makers. So that's why this listening and understanding is very important, especially with empathy. Okay, Khatija, welcome. Detecting cues of feelings or emotional state, empathy, accurately express other people, concept, emotions, and problem, paraphrasing, clarifying, and building upon others' word or emotions. Mean whenever we having the information, whenever we having the feelings about, and once ever you have a listening ability, listen carefully so that your stamina will be developed. You can for the better understanding, for the better clarity. And if you are not properly clarified, do not get the wrong meaning. Always paraphrase or find out the alternate meaning and explain in the good manners. So clarify and building upon other word and emotions. आपने दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को समझने की जरूरत है, समझने की कोशिश भी करनी है, ठीक है. सो कोऑपरेटिव थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस. Cooperative thinking mean you need to be emotionally intelligent. I heard the quotations, the one educationist coined the term that if a person is emotional intelligence, he is the more successful and have a great performance in the job and got what to call it, fear, less fear, and उसके अंदर क्या courage होगी, bravery होगी, और उसके अंदर क्या होगा, intelligent. अगर आप intelligent, आपका emotionally intelligent है, तो you can adjust in any situations, like working effectively in group. आप किसी भी ग्रुप में या टीम में आप काम करते हो, जब आप इमोशनली इंटेलिजेंस होते हो, तो यू विल एडजस्ट इन एनी सिचुएशंस. Like I quoted the quotation of Anatole France. He is saying that an education is not how much we committed to memory. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिमाग में हमने कितना कुछ डाल लिया है या हमारे दिमाग में कितना स्टोर है. It is matter or how even much you know, या आप कितना जानते हैं. It is being able to differentiate between what you know and what you don't know, because nobody is a perfect. So here are another characteristics of the intelligent behavior or a self-directed learner: flexibility of thinking. You always have flexibility. Without flexibility, you can lead any single, even not to yourself, your personal thing, your personal life, your personal matters. If you will have a rigid thinking, you always need to have a flexibility in your mind, in your thinking. So think outside the box. Assalamu alaikum assalam. So thinking outside the box, considering alternating point of view. आपने हमेशा उसके alternate भी देखने, आपने किसी चीज पे स्टिक नहीं हो जाना, आपने हमेशा flexible रहना है. Dealing with several sources of information simultaneously. आपने उसको different sources से उसको proceed करना है, उसको देखना है, ठीक है. Like illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. So अगर आप 21st सेंचुरी में अगर कोई आप समझते हैं कि इलिटरेट देखते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि जिसको लिखना पढ़ना, बल्कि वो होंगे जो लर्न नहीं करना चाहते, अनलर्न होते हैं, एंड और फिर दोबारा से रीलर्न करने की उनका नॉलेज आउटडेटेड हो जाता है. दे नीड टू अपडेट इवन वेदर एट द. अगर मैंने एक कोटेशंस पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि इवन यू विल स्टॉप वन यू स्टॉप द लर्निंग वेदर इन 20 or 80, इट इज शोज इलिटरेसी. कि आप इलिटरेट है कि आप अपने नॉलेज को अपडेट करना नहीं चाहते हो. मेटा कॉग्निशंस का मतलब होता है, मेटा मीन बियॉन्ड, कॉग्निशंस मीन माइंड. आपने अपने माइंड, एबिलिटी ऑफ द माइंड टू रिटेन एंड योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड, ठीक है, एबिलिटी ऑफ टू अंडरस्टैंड मीन if you have a knowledge, find the knowledge through the knowledge. If you have a thinking, create a thinking through thinking. So be aware of the step used to solve a problem. If you use properly metacognition, you will go to the depth
ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम को उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और उसके सीक्वेंस को स्टेप्स में करेंगे, उसको प्रॉपर स्टेप में जाकर करने की कोशिश करें, मेकिंग अ प्लान ऑफ एक्शंस, और फिर आप उसके लिए प्रॉपर सॉल्व करेंगे इफ़ यू हैव अ प्रॉपर मेटा कॉग्निशन। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपकी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स अच्छा, इट डिपेंड on the, sometimes it is hereditary, some people are very intelligent from the birth, some are environmental learners, some we always learn from the other, from the home, from the school, from the books, so many way. Some are really very intelligent by birth and they have a hereditary things to have ability to learn, वो बाय बर्थ टीचर होते हैं, बहुत बाय बर्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड लर्नर्स होते हैं। जैसे हमने देखा था स्टाइल्स ऑफ द लर्नर, देयर इज अ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ, सम आर ऑडिटरी होते हैं, सम आर काइनेस्थेटिक्स होते हैं, सम आर कौन से होते हैं, सॉलिडिटरी होते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ द लर्नर्स विच आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, इन द प्रीवियस क्लासेस। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का सेम ही मतलब होता है, यानी कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने पढ़नी है, या अपने ख्याल में थिंकिंग को करना है, बी क्लियर विद द एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, प्रिसीजन ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। वेदर रीडिंग हो प्रिसीजन, या थॉट की हो, या फिर आपकी लैंग्वेज कोई बात करने की हो, देयर इज ऑलवेज नीड अ क्लैरिटी। नुदरत वालेकुम अस्सलाम। सो आपने जब रीड करना है, चेकिंग ओवर योर वर्क, आपने प्रॉपर अपने काम को चेक करना, उसके आपने क्या वर्ब्स को देखना है, कहीं स्पेलिंग्स मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं है कि जिसके मीनिंग गलत हो जाए और फिर कोई उस पर दूसरे का इंप्रेशन जो है आपका रीडर का वो रॉन्ग पड़ेगा, मे बी यू विल टेक द डिफरेंट मीनिंग, और फिर आप अपनी जो है इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर सकेंगे। हेलो, हेलो, a sense of humor mean having a fun. You need to create a fun among your audience, so they will be on they will be encouraged and get interested in your what to call your presentation, your lecture, your study, so they will get interested. So ability to perceive situation from an original and humorous point of view, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि आपने सिचुएशंस को उसके ओरिजिनल में जब समझना है, तो आपने हमेशा ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी देखने की जरूरत है। क्वेश्चनिंग, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एक्विजिटिवनेस। वो मेरा बैग लेके आना और मेरा ना उसको कहना, इसको आमिर को बुलाओ, इसको बुलाओ, मेरा बैग लेके आना ब्लैक वाला, आप लेके आना जरा। मेरी बैटरी लो होगी, प्लीज इधर चार्जिंग पे लगाना, मेरा वो चार्जर है मेरे पास, इस पे कहीं से कनेक्ट कर दो। मैंने वलीद को कहा, देखो वलीद भूल गया, मेरी बैटरी लो कितने परसेंट, बिल्कुल थोड़ी रह गई है, 2 घंटे तो हो गए हैं। हाँ हाँ पेन है, वो लेने की, मैंने उसे कहा मेरा बैग ले आ, इसके अंदर तो देखो ये 2 घंटे से तो ऑन पड़ा हुआ, इसकी बैटरी जल्दी लो हो क्या मर्जी लगा दो कहीं, ये लो। Hello. So, hello, dear students. Please continue with me. So, questioning is the big, mind exploring technique. So, you can explore your own thinking. You can question to your mind so that you have a more clarity about the topic. Active problem solving and acquisitiveness. Questions are creative acts of intelligence. ठीक है, ये एक बड़ा क्रिएटिव एक्ट होता है। अगर आप गुड लर्नर, आप इंटेलिजेंट हैं, यू हैव अ मोर क्लैरिटी टू योर माइंड, सो यू नीड टू क्वेश्चंस। ड्राइंग ऑन पास्ट knowledge and experience. Sometimes
we are using our previous knowledge what we learned, but sometimes we need to have a new knowledge regarding the new guidelines, new things. To regret one's own experience is to arrest one's own mind, own development. अगर कोई अपने एक्सपीरियंस से शर्मिंदा होता है, को शेयर करने से या अपना करने से शर्मिंदा होता है, या वो रिग्रेट होता है, तो इसका मतलब क्या है? ही इज अरेस्ट, वो अपनी ही तरक्की को गिरफ्तार करता है. Risk taking, a mind stretched to a new idea never goes back to its original dimensions. Oliver Wendell Holmes. उसने कहा है कि pushing the envelope, going beyond the correct answer. Once you are a risk taker, do not think that this is right. Go beyond the right things, so you will find the more right things. ठीक है? Knowledge through knowledge. ठीक है? When we have a knowledge, we all, like मैंने आपके सामने एक quotation से नोट किए बताया था, मैंने आइंस्टाइन की एक एग्जांपल दी थी. उन्होंने कहा था कि without imagination there is no thinking. Before thinking there should be imaginations. जब आपके पास imaginations नहीं है, तो you will not create any thinking. ठीक है? Idea should be before thinking, before having the more clarity about the thinking, you must have an imaginations. So pushing the envelope, going beyond the correct answer. इसका मतलब है कि आपने लिफाफा देके ये नहीं कहना है कि बिल्कुल हमने ये करेक्ट है, ये चीज ये ठीक है. You need to find another way. Experience is the name everyone gives to their mistakes. ठीक है? तो हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है. आप जब करेंगे रिस्क, ये नहीं है कि मैंने पानी में नहीं जाना क्योंकि पानी बहुत गहरा, लेकिन जब तक कि आप पानी के अंदर जाएंगे नहीं, यू विल नेवर नो द डेप्थ ऑफ द वाटर्स. ठीक है? या मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी, मैं नहीं कर नहीं सकता. मे बी यू आर अ शाय, मे बी यू हैव अ फियर ऑफ failures. ठीक है? So all these are, you always be a risk taker. Go beyond the things and have an experience. Without experience, कोई भी शख्स अपनी, हर बंदा अपनी मिस्टेक से सीखता है. ठीक है? So you always need to be a risk takers. और अच्छा लीडर वही होता है जो रिस्क टेकर होता है. Using all the senses, multi-focus experience. You hear all the senses. Why God has given us 5 senses? Because all senses give us a strength, understanding, clarity. ठीक है? जब हम सुनेंगे नहीं, तो हम अगर देखेंगे तो सुने बगैर हम चीज को नहीं कर सकते. जब तक हम देखे सुने, लेकिन हम करते नहीं काइनेस्थेटिक. तो ये सारी कौन सी है? ऑडिटरी सुनना, विजुअल देखना, काइनेस्थेटिक करना. हाथ से जो चीज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? काइनेस्थेटिक. तो जैसे लर्नर्स डिफरेंट होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, सम विजुअल होते हैं, सम आर काइनेस्थेटिक. द आर्ट ऑफ टीचिंग इज द आर्ट ऑफ असिस्टिंग डिस्कवरी. टीचिंग का मतलब है कि आपके पास, आपने हर तरह से चीजों को जब आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट मीन यू आर असिस्टिंग डिस्कवरी, कि आपने पूरी चीजों को डिस्कवर प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है. सो यूजिंग बाय ऑल सेंसेस. क्लियर बच्चों? अंडरस्टैंडिंग. मैंने ये आपसे 14 characteristics इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर. सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड एंड अंडरस्टैंड वेल. हैव सेल्फ रीडिंग. Teacher can open the door now. It's up to you how to enter inside the room. Teacher will just open the door. Oh my God, there is a creativity. Creativity. Use the ingenious product, solutions and technique. Ingenious का मतलब होता है आपने अपनी cognitive abilities को, इंटेलिजेंस चीजों, अपनी इंटेलिजेंस बिहेवियर को यूज करना है. ओके, क्लियर. अनसब अर्थ कॉज. गुले लाला. यस मैम. ओके गुले लाला, यू आर अ गुड बच्चा, ऑलवेज प्रेजेंट. वेरी गुड गुले लाला. गुले लाला. So the use of ingenious product, solutions and technique. Once you are intelligent and you have an intelligent behavior, you always go to find out the correct with clarity and with all solutions. आपके पास alternative होंगे, आपके पास multiple technique होंगे. You can use to make yourself more creativity. Creative mind have always been known to survive any kind of bad training.
ठीक है, जब आप क्रिएटिव माइंड होंगे तो पीपल हाउ मच डिस्टर्ब यू, हाउ मच, once you are creative and you know all the way and you are intelligent, you can handle all the situations. Wonderment, love of learning, curiosity and love of learning, curiosity, and lifelong learners. The secret of technique is to appear to have known all of your life what you just learned this morning. So wonder always you have an extraordinary आपको अचीवर होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होना, यू नीड टू लव द लर्निंग, ठीक है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, दैट मेक यू अ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, ठीक है। वंडरमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सप्रेस योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, लाइक उसने कहा कि सीक्रेट ऑफ द टीचिंग इज टू अपीयर टू हैव नोन ऑल योर लाइफ व्हाट यू जस्ट लर्न दिस मॉर्निंग, कि आपकी जो टीचिंग का सीक्रेट वो क्या चीज है, आपकी लाइफ होती है, नॉट ये कि आपने इस मॉर्निंग में जो सीख लिया, इसमें आपकी पूरी लाइफ एनवायरमेंट इन्वॉल्व होती है। इसलिए ऑलवेज लव टू लर्निंग, सो हैव एन क्यूरियोसिटी and have an express yourself an extra achievement. So it does not mean in this morning you learn, that mean you are a good learner, you learn all. So it is a lifelong process. So here are the brainstorming in this self-directed learning. आप students की classroom जो है में कैसे आप इन 14 characteristics को use करते हैं, आप students को evaluate कर सकते हो। Mean आप, for example, if you are assigning a topic and giving the brainstorming to check the student self characteristics of the persistence, you can assign the topic to your students and ask them and observe their behavior, whether they have interested or not interested. If they are not interested, what is the reason behind, क्या चीज है, why they have a fear, क्या चीजें हैं जो उनको persistence में stop कर रही हैं, they are not persistent in their topic, ठीक है। तो आपने इन चीजों में जब चेक करना है तो आप ये जितनी भी मैं आपको भी 14 कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये देख सकते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करा के परसिस्टेंट, आप उनका फियर चेक कर सकते हैं, उनका नॉलेज है, नॉलेज का फियर है, क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बात है, क्या चीज़ है जो उनको परसिस्टेंस में स्टॉप कर रही है, या वो वाकई वेरी गुड लर्नर है, सो दे कैन परसिस्ट ऑन देयर टॉपिक। मैनेज इम्पल्सिविटी, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने अपनी इम्पल्सिविटी को देखना, अपनी चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से आपने कोई चीज़ इमीडिएटली नहीं, आपने ऑलवेज प्लान करना है, बिफोर बिगिनिंग आपने हमेशा सोचना है, ठीक है। लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, ठीक है, इन चीज़ों को भी आपने देखना कि आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कराते हो अबाउट द सेल्फ डायरेक्टेड, टू चेक द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और गुड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने चेक करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि अपने योर स्टूडेंट हैव एबिलिटी टू लर्न द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की है, यू कैन आस्क योर स्टूडेंट कि उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया तो क्या मीनिंग लिए हैं, अगर क्या मीनिंग लिए हैं तो उनको किस तरीके से उन्होंने सुना है, ये सारी आपने अपने स्टूडेंट के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करवानी है। मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, ठीक है। क्रिएट एन अ ग्रुप एंड गेट द आइडिया फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है। आप जब उनसे डिफरेंट आइडियाज लेंगे, आप उनको कहेंगे आप अपने अपने आइडियाज को बताएं, इसका मतलब यू आर गेटिंग द आइडियाज फ्रॉम द अदर इन द शेप ऑफ ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो कोऑपरेटिव थिंकिंग, सोशल इंटेलिजेंस, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी का मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इमोशनल इंटेलिजेंसी है जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको कोऑपरेटिव के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि आपको क्या करना, टास्क जो है आपने आपके अंदर जो है इंटेलेक्चुअल, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है ना, वो प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। इसके लिए आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की डिमांड है कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी है, मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, आप उनके जरिए आप अपने नॉलेज को खुद से किस तरीके से आप उनसे क्या नाम है इन्वॉल्व हो सकते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। सो सबसे पहले जो चीज़ है, कंसीडर विद, आपने देखा है कि जो इंसान की लाइफ है
वो क्या करती ऑलवेज, कभी भी कंसीडर विदाउट इमोशंस के नहीं। अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो इसका मतलब है कि वी आर अ सिचुएशनल हैंडलर, प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। हमारे अंदर ये सारी क्या होंगी, हमारे अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हम इंटेलिजेंट होंगे। पहले क्या कंसीडर किया जाता था, इंटेलिजेंट वही होता है जिसका आईक्यू अच्छा होता है, ठीक है, जिसका हायर आईक्यू लेवल्स होता था उसको इंटेलिजेंट, और उनको ये कंसीडर किया जाता था कि दे आर अ गुड सक्सेसर और गुड अचीवर्स, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ में ज्यादा अचीवर्स हैं जिनके पास इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। बट दिस जो क्या व्हाट टू कॉल इट, दिस जो स्टेटमेंट है, क्रिटिसाइज किया किसी, उसने कहा इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट मेक द पर्सन्स सक्सेसफुल। उसके साथ उसने ये बात, एक रिसर्च के मुताबिक उसने बताया कि अगर किसी पर्सन में हायर लेवल इमोशनल इंटेलिजेंसी है तो वो अपने ग्रेटर कैरियर्स हो सकता है, उसका सक्सेस, उसकी जॉब सक्सेस, उसकी परफॉर्मेंस जो आती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, फास्टर होती है, ठीक है, और उसके रिलेशनशिप विद अदर्स एज गुड, ठीक है, एंड हैव एन इफेक्टिव लीडरशिप। Leadership does not mean that you have an always authoritarian style and you are just have a dictatorship, do this, do this, do this. Leadership means you lead the people, by the people, to the people, and there is a, I like the democracy slogans of Benazir Bhutto. उसका स्लोगन था कि आप लोगों के जरिए लोगों तक, और लोगों के जरिए लोगों के लिए और लोगों तक। तो जब हम लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अपने लर्नर्स को अंडरस्टैंड नहीं करने, वी विल नेवर बी अ गुड लीडर, वी विल नेवर बी अ गुड टीचर्स। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ टीचिंग स्टाइल्स, ठीक है। मैंने लर्निंग स्टाइल की बात नहीं करी, मैं टीचिंग स्टाइल की बात कर रही हूँ। टीचिंग स्टाइल्स ये होते हैं जैसे अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल्स होता है, और लेजर होता है, एंड डेमोक्रेटिक होता है। सो द अथॉरिटेरियन इज ऑलवेज अ डिक्टेटरशिप। उसमें क्या किया जाता है कि वट एवर इज आई एम टेलिंग, आई एम द अथॉरिटी, आई हैव द एबिलिटी, मेरे पास सारा नॉलेज है, आई एम टेलिंग, you are just passive learner, you need to sit and just receive the informations because I am the active and you are the passive learner. You need to learn from me whatever I'm telling you. There is a no room for having a question, interactions and participation in the class. So ये जो चीजें होती हैं कि आपको इसमें लेस चांस दिया जाता है। लेकिन बात हम कर रहे थे स्टाइल्स की, तो लेजर जो स्टाइल्स होता है उसमें क्या होता है, ऑल द जो राइट्स होता है, स्टूडेंट हैव अ राइट वेदर दे वांट टू अटेंड द लेक्चर और वेदर नॉट, और जो उनकी मर्जी है, जो जिस तरह से करना चाहते हैं कर सकते हैं। दे डोंट वांट टू अटेंड द क्लास, दिस इज द, बट इन पाकिस्तान दिस स्टाइल इज प्रोहिबिटेड। ये अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोग, हम तो चाहते हैं, हम तो आपको पता है जब तक हमें कोई कुछ कहे ना हम करने के लिए पसंद ही नहीं करते। सो दिस स्टाइल इज नॉट प्रेफरेबल in this classroom or even in any criteria in Pakistan. I think so, because I'm Pakistani, I can share only about the Pakistan. So if you will talk about the democratic, I like to prefer teaching democratic way, because in democratic student and teacher have a right to have a discussions, दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होगा, डिस्कशन होगा, टीचर क्या कहता है, स्टूडेंट उसके बारे में क्या, दे कैन आल्सो एक्सप्रेस देयर थॉट अबाउट द टीचर स्टेटमेंट। गुड इवनिंग सना। सो टीचर के पास राइट होता है, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों डिस्कस कर सकते हैं, दोनों के पास राइट होता है कि वो बात कर सकें, दोनों अपनी आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं। टीचर कहता है, स्टूडेंट उसको अपनी फीलिंग्स में बताता है कि आई अंडरस्टैंड, सो यू विल गेट टू नो कि योर ऑडियंस ऑन ट्रैक, दे आर लर्निंग वेल, ठीक है। तो हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। यहाँ पे जॉन डी मिलर ने कॉइंट किया था टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस। सो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फर्स्ट टाइम यूज होता है 1990s के अंदर यूज हुआ था, उसने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि सोशल इंटेलिजेंस इंक्लूड, इसमें क्या एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं तो ना सिर्फ हम दूसरों की बल्कि हम अपनी एबिलिटी को भी सस कर रहे होते हैं, ना कि हम दूसरों को ही सस करते रहे कि दूसरों में ये फॉल्ट है। वी नेवर लुक एट इन आवर ओन नेक दैट व्हाट वेयर इज फॉल्ट, ठीक है। जब आपके अंदर फॉल्ट आप दूसरों में ढूंढेंगे तो आप दूसरों को गलत कहेंगे, अपने आप को दुरुस्त कहेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, अपने आप को भी देखना है और दूसरों को भी देखना है, ताकि हम किसी भी सिचुएशंस में क्या है, हर सिचुएशन में हैंडल कर सकते। तो हम बात कर रहे थे कोऑपरेटिव थिंकिंग एंड सोशल इंटेलिजेंस। सो इन दिस टॉपिक
about the to become a self-directed learner and have any characteristics of cooperative thinking and social intelligence. Being a student, you need to have a metacognitive ability and have an emotional intelligence characteristics, so that you will able to find yourself as well to others to understand well. So ability of thinking, ये भी देखना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग, आपकी थिंकिंग रिजिड नहीं होनी चाहिए, आपने आउटसाइड द बॉक्स देखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको, आप ये समझ लें कि आपकी ये क्या हो रही है, रिपीटेशंस हो रही है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबिलिटी, आपने एक बॉक्स के अंदर खाने के, इसके अपने अंदर बाहर डिफरेंट एंगल से देखना, इसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव देखना और डिफरेंट रिसोर्सेज में जाके आपने इस चीज को और मजीद अंडरस्टैंड करना और समझना है। मेटाकॉग्निशंस का मैंने बहुत दफा जिक्र कर चुकी हूँ कि मेटाकॉग्निशंस क्या होता है। मेटा मीन बियॉन्ड एंड कॉग्निशंस मीन मेंटल, ठीक है, मेंटल एबिलिटी और एक्शंस आप देख सकते हैं कि जिसमें आप अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, माइंड को क्या करते हैं, आप अपने माइंड में क्या रिटेन करते हैं, क्या आपके पास स्किल्स है, क्या लर्निंग है। कॉग्निशंस में आपका नॉलेज आ जाता है और आपकी थिंकिंग आ जाती है, ये सारी चीजें किसमें, कॉग्निशंस में इन्वॉल्व होती हैं। एक्यूरेसी, आपने मेटा के स्टूडेंट के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो मेटा कॉग्निशन उसके अंदर स्किल्स हैं कि आप जब आप उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहे हैं, आप सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग की तरफ उसको मूव करा रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि आपके स्टूडेंट के अंदर क्या मेटा कॉग्निशन एबिलिटी कितनी है, वो कितनी चीज को कितनी गहराई में देख सकता है, या वो चीज एक चीज बताई उस चीज से कितनी चीजें और निकाल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये पानी है, तो आप सबको पता है कि पानी क्या होता है, पानी का रंग कैसा होता है, पानी कैसा होता है, पानी कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन किसी ने यही पता कि पानी पानी ही होता है, तो इसका मतलब है कि उसका नॉलेज लिमिटेड। आई एम जस्ट शेयरिंग द एग्जांपल विद यू, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, आपने जैसे मैंने बताया था कि आपने क्या देखना है, हर एंगल से देखना है प्रिसीजन में, कि एक्यूरेसी देखनी है, रीडिंग में देखनी है, आपने लैंग्वेज देखनी है, थॉट देखनी है, इसमें क्लैरिटी है, तो हर एंगल से आपने देखना है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। कि आपने गोल क्या सेट किए हैं, आपके पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त गुस्से में हो, आप यू नीड टू क्रिएट अ फन, लिटिल फन। लाइक कॉमेडियन क्या करते हैं, उनके अंदर ये फन होता है, स्किल्स होती हैं, दे मेक द ऑडियंस लाफ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, ताकि आप स्टूडेंट्स के अंदर या अपने लर्नर्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। क्वेश्चनिंग इज अ वेरी क्रिएटिव वे टू एक्सप्लोर योर नॉलेज, टू गाइड योर माइंड, टू क्लियर योर थॉट, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं करते, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ड्रॉइंग ऑन पास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो जब हम आप हमेशा हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें, अपने नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है, हम पास्ट चीजों से सीखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हम एकदम से, जैसे इस मॉर्निंग में मैंने ये सीखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सारी चीजें सीख ली हैं, इसका मतलब है कि आपने कंटिन्यू लर्निंग में इन्वॉल्व। रिस्क टेकिंग मैंने बताया था कि आपने किसी भी चीज में, जब आप चाहते हो कि गुड लर्नर नेवर बी हैव अ फियर और शाय, और कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो सकता, always your personality should be risk taken, because as a good manager, as a good teacher, good learner, you always have a quality to become a self director of, so that you will be, once you will have a risk taking qualities, you will always get the success. Even you were failure, but you will get the experience. जरूरी नहीं होता कि हर अटेम्प्ट के अंदर आप सक्सेसफुल बन, लेकिन इट विल मेक यू, आपके वो एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं, आपकी पर्सनालिटी में उन चीज़ों से आपको हर चीज़ करनी चाहिए, हमेशा करने के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी कि पानी में जाने से पहले आपको कैसे पता चलेगा पानी कितना गहरा है। यूजिंग ऑल सेंसेस, आपने अपनी सारी सेंसेस, ऑडियो, विजुअल्स एंड कैनेस्थेटिक्स, यही बताया था स्टूडेंट्स। Are you with me? I'm continuously talking. Okay, yes, ma'am, exactly. Understanding well? Okay.
ओके राइट अक्सा, थैंक यू सो मच अक्सा। काश मैं भी आपकी वॉइस सुन सकती, आप मुझे भी आपकी वॉइस आ जाती, बारी बारी आती है ना। So these qualities is really very very important to become a self-directed learners और good leadership qualities। ठीक है, ये आपके अंदर आप लीडरशिप में यूज कर सकते हो, और प्लस आप इट शोज मी दैट यू आर अलाइव नाउ बिकॉज यू आर टेक्सिंग मी। ठीक है, सो क्रिएटिविटी इज ऑलवेज आर्ट। ठीक है, एक फन है क्रिएटिविटी। वंस यू विल, अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी की एबिलिटी थी, यू कैन एडजस्ट इन एनी बैड सिचुएशंस। मैंने बताया था आपको, वंडरमेंट का मतलब बताया था एक्स्ट्रा, यू नीड टू एक्सप्रेस द एक्स्ट्रा अचीवमेंट। ठीक है, आपने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट को शो करना है, और आप जब चाहते हैं कि आप कुछ जिंदगी में ज्यादा कुछ करें, आप ज्यादा अपने आप को शो करना चाहते हैं, यू बिकम द मोर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। जब आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बन जाते हैं, यू आर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। जब आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बन जाते हैं, यू बिकम अ self autonomous and getting the respect, and you will see automatically people will trust you, people will respect you. So you cannot teach me, you cannot teach a man anything, you can only help him find it within himself। गलीलियो ने कहा है कि कोई भी जो इंसान है वो किसी को टीच नहीं कर सकता, you can only help him to find within himself। ठीक है, तो आप उसको सिर्फ उसकी मदद कर सकते हो। गलीलियो के मुताबिक फोस्टरिंग सेल्फ डायरेक्टिव, अब आपने फोस्टर करना है सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग, तो आपको क्या करना जरूरी होता है? The most important outcome of education is to help student become independent of formal educations। ठीक है, सो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है एजुकेशन के लिए? आउटकम जो है, ठीक है, टू हेल्प द स्टूडेंट बिकम इंडिपेंडेंट फॉर द फॉर्मल। आपने स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना होता है। ये नहीं है कि ये चीज बता दी, ये चीज स्टूडेंट को सिर्फ उसी को देख रहे हैं, बट दे नीड टू बी बिकम अ सेल्फ डायरेक्टर, सो दे कैन गाइड देमसेल्फ। अपने आप को वो खुद से गाइड कर सकते हैं, खुद से अपने नॉलेज को अपने गाइड कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को खुद से डेवलप कर सकते हैं। दे कैन फाइंड द वे, दे कैन फाइंड द प्रोसेस वेयर दे विल नो द रिसोर्सेज, वेयर टू गो, हाउ टू फाइंड, हाउ टू सिंथेसाइज, हाउ टू इवैल्यूएट। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटी ऑफ द सेल्फ डायरेक्टर टू फोस्टर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सो नॉलेज इज पावर, फ्रांसिस बेकन, अकॉर्डिंग टू द, ये जो मैंने आपको ऊपर कोटेशन बताई, पॉल ई ग्रे, एंड नॉलेज इज पावर इज फ्रांसिस बेकन। इसने कहा है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज के बगैर आप कोई चीज भी, जैसे हथियार है, उसके विदाउट नोइंग हाउ टू ऑपरेट, इट इज यूजलेस। आपके पास वेपन तो है, लेकिन आप उसका यूज भी नहीं करना था, लेकिन आपके पास नॉलेज है, तो इसका मतलब आपके पास पावर है। फोस्टिंग सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग इन क्लासरूम में आप कैसे कर सकते हो? क्लासरूम क्लाइमेट को आपने देखना है। पर्सनलाइजेशन में आपको क्या होना चाहिए? कंफर्ट होना है एंड फोस्टर रिस्क टेकिंग। एक चीज है कि आपकी क्लास का एनवायरनमेंट जो पर्सनलाइजेशन पे देखें, तो आप क्या होना चाहिए? कंफर्टेबल होना चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, एंड कोलैबोरेशन, आपका टीम वर्क होना चाहिए, और कम्युनिटी सर्विस, यानी कि कोलैबोरेशन में आपको दूसरों के साथ अपनी प्रॉपर, ये नहीं कि आप एक स्टूडेंट को बता रहे दूसरे स्टूडेंट सुन नहीं रहे, या आप अपने टीम में काम कर रहे हो तो आप एक ग्रुप के साथ हो तो बाकी ग्रुप को आप क्या कर रहे हो? अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या आप उनको प्रॉपर आप उनको गाइड नहीं करते। तो अपने कोलैबोरेशंस रखनी है, टीम के साथ कोऑर्डिनेशंस रखनी है, सेलिब्रेशन शेयरिंग से, सेलिब्रेट कैसे करना है? शेयर करके, पीयर सपोर्ट से, एक दूसरे की मदद के तहत। 9/10 of the education is encouragement. So this is the quotation is Anatole France. Fostering of self-directed learning, quality of work. अब आपने देखना, पहले हमने क्या देखा? पर्सनलाइज लेवल पे देखा है, कोलैबोरेशन देखी है, सेलिब्रेशन देखी है। ठीक है, पर्सनलाइजेशन में हमने देखा कंफर्ट रखना है। ठीक है, और उनको ताकि लोग आपके साथ ट्रस्ट कर सके, उन्हें इफेक्टिवली एफिशिएंटली उस चीज़ों को लर्न कर सकें, और अपने फोस्टर रिस्क टेकिंग। और आपको रिस्क टेकिंग के बारे में पहले भी मैंने डिटेल में बताया। कोलैबोरेशन में क्या है कि आपका अपनी टीम के साथ कोलैबोरेशन होनी चाहिए, और शेयरिंग में आपको उनके साथ शेयर करना है, ग्रुप टू ग्रुप शेयर करना है, विद इन ग्रुप करना, आउट द ग्रुप करना है, एंड विद द पीयर सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। सो फर्स्टिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा? एक्सटर्नल फीडबैक, इंटरनल आपने एक्सटर्नल दूसरों से भी पूछना है, गाइडलाइंस क्या है, ठीक है,
गाइडलाइन क्या है, पीयर रिव्यू देखेंगे आप, उनका इंटरनल फीडबैक है, जर्नलिंग है, आप उसके बारे में इंटरनल फीडबैक बारे में देख सकते हैं, जर्नलिंग क्या है, सेल्फ असेसमेंट क्या है, सेल्फ असेसमेंट खुद से सेल्फ कर सकते हैं। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, ये कोई मंजिल नहीं है, ठीक है, ये एक रास्ता है। सक्सेस ऑलवेज, आप जब जब लर्न करते जाएंगे यू विल हैव अ गुड जर्नी, not a final destinations. Organization and management, what to do, syllabi mean the plural of, ये जमा है syllabus की, आपने syllabus को देखना है कि आपने करना क्या, management और organizations कैसे करनी, syllabus के content को देखना है, assignments दे सकते हैं, when to do it, prioritization and timelines, आपने देखना कौन से प्रायोरिटाइजेशन का, आपने चीजों को देखना कि प्रायोरिटीज क्या, कौन सी चीज पहले करना जरूरी, कौन सी बाद में, और फिर उसके लिए टाइमलाइंस को भी देखना, हाउ टू डू इट थ्रू द गाइडलाइंस। द मेडियोर्स टीचर टेल, यानी कि एवरेज और पुअर टीचर्स टीचिंग जो है, टीचर टेल, द गुड टीचर एक्सप्लेन, द अच्छा टीचर जो होता है वो सिर्फ, गुड मेडियोर्स टीचर जो होता है, जो एवरेज टीचर होता है वो सिर्फ बताता है ये, बट गुड टीचर ऑलवेज एक्सप्लेन, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट, एंड द ग्रेट टीचर इंस्पायर। क्लियर माय स्टूडेंट्स? So which one you become the teachers? Which teacher you would like to become a teacher, and which you have an quality? I mean, to mediocre teachers, mediocre, and good teachers, or superior teacher, or great teachers. Which teacher would you like to become, or you like the which teachers? Ji, this is not my question, Ji. My question is, just give me your feedback. I read one quotations, the mediocre teacher tells, the good teachers explain. जो एवरेज टीचर होता है वो क्या करता है, बताता है, बट अच्छा टीचर एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो सुपीरियर टीचर होता है वो करके भी दिखाता है, लेकिन जो ग्रेट टीचर होता है ऑलवेज इंस्पायर फ्रॉम द अदर्स। Fostering self-directed learning, rubric mean heading of the documents indicate progressions through the learning experience, ठीक है। आपकी कोई भी आपने rubrics का बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक किसी चीज की, all teacher are good statement, this is a political statement, all teacher are good, yes all teacher are good, but here is the categories of the teachers, the good, the mediocre teachers is always, we will become a great teacher, very good, I hope, I wish really. Indicate, because we learn in this lecture, because a good teacher also always have a sense of humor. The sense of humor mean having a get interested, though the audience can be get interested. Oh, great teacher, very good, because he's inspired. A guide to assist student in monitoring their own progress. आपके पास हमेशा क्या होनी चाहिए? There should be always a guideline to monitor your student. A good teacher has been defined as one who make himself progressively unnecessary. चलो इसको पढ़ना, मैं थक चुकी, इतना बोलना पड़ता है अल्लाह। रूब्रिक के नेक्स्ट जो है कंपोनेंट भी देखेंगे, डिस्क्रिप्टर देखेंगे, एवेलुएटर का देखेंगे कि कंपोनेंट में परफॉर्मेंस आ जाती है, इसमें मेजरेबल टर्म देखेंगे, मेजरेबल टर्म में हम वी कैन ऑलवेज मेजर द, क्या नुदरत, व्हाट टू रिपीट, क्या रिपीट करूं? Aksa, very good. Okay, Aksa, very good. You want to become a good, great teacher or good teacher? You will explain only, not extraordinary. What to repeat? Very good, Aksa.
सो रूब्रिक में कंपोनेंट देखेंगे, परफॉर्मेंस है इन मेजरेबल टर्म। मेजरेबल टर्म में हम यूज क्या करते हैं, टर्म स्मार्ट, याद है क्या है स्मार्ट से बनता, स्पेसिफिक, मेजरेबल, लाएबल, ये सारे इसके टर्म्स को आगे आप जब स्मार्ट देखेंगे तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्मार्ट से क्या निमोनिक्स बनते हैं। डिस्क्रिप्टर में प्रोग्रेसिवली मोर चैलेंजिंग, आप जब चीजें करेंगे तो वो चीजें डे बाय डे मोर हो जाएंगी, ज्यादा प्रोग्रेसिवली होने, आप और चीजों को देखेंगे, फिर आपने एवेलुएट करने थ्रू द रेटिंग कि कौन सी चीज कितनी इफेक्टिव थी, कितना अंडरस्टैंड हुआ, तो इसमें भी आप एवेलुएशन कर सकते हैं। आपने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो उसमें आपने यूजिंग 14 कैरेक्टरिस्टिक क्लासरूम क्लाइमेट्स का जो समराइज पॉइंट है, आपने क्या करना है 14 कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करते हैं स्टूडेंट क्लासरूम में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 14 कैरेक्टरिस्टिक को यूज करेंगे, क्लासरूम का एनवायरनमेंट देखेंगे, जैसे हमने बिगनिंग में भी पढ़ा था एंड इन बिटवीन भी पढ़ा कि क्लासरूम एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल भी देखेंगे, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क देखेंगे कि कौन सी चीज कितनी इफेक्टिवली यूज में है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट देखेंगे कि आपने प्रायर कितनी, और रूब्रिक में हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कौन सी चीज किसके बाद क्या चीज प्रोसीड कर रही है, ठीक है। मोटिवेटिंग टुडे लर्निंग, लर्नर्स क्या चीज आज के लर्नर को मोटिवेट करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई वॉज गोइंग टू चेंज my shirt, but I changed my mind instead. Wow, what a accident quotation over here. So I was going to change my shirt, but I changed my mind instead. उसके बजाय मुझे अपना माइंड चेंज करना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नीड टू बी फुल अपडेटेड। आपको आपको अपने नए, आपको अंदर, आपके माइंड के अंदर आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, आपका माइंड के अंदर नई शर्ट होनी चाहिए, ना कि बॉडी के ऊपर नई शर्ट होनी चाहिए। नए शर्ट का मतलब न्यू कवरिंग मीन न्यू डिस्कवरी, हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट in your mind so that you can express your audience to motivate today learners. Motivating today learners, many students today are not motivated in the school. Kyun? Because of we are not giving the chance to express their feeling, we are not using the sense of humor, we are not using the what to call it sympathy, and not listening proper understanding. और क्या होता, बहुत सारी चीजें हैं कि जो आज के जो है उनको मोटिवेट नहीं करती। मैंने स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं होते बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ गाइडेंस। क्या चीज हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, मोटिवेटिंग टुडे लर्नर, टीचर कैन बी द की टू मोटिवेटिंग अनमोटिवेटेड स्टूडेंट। ये टीचर के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होनी चाहिए कि वो ऐसे स्टूडेंट को भी मोटिवेट कर, दोज आर लेस मोटिवेटेड। एस्टैब्लिश अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सबसे पहले आपने एनवायरनमेंट को देखना कि दैट शुड बी वेरी सपोर्टिव। हम आपकी जो सपोर्ट होती है इमोशनल, और जो क्या कहना चाहते हैं इमोशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस, प्रोवाइड स्टूडेंट विद टाइमली फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, recognize student for their effort and achievement, provide student with timely feedback on their performance। आपने टाइमली फीडबैक देना है स्टूडेंट्स को ताकि आप पता चले कि वो वाकई उनको पता चले दे नो एंड दे विल बी ऑन कीप ऑन राइट ट्रैक ऑन लर्निंग, रिकॉग्नाइज स्टूडेंट फॉर देयर एफर्ट एंड अचीवमेंट। आपने स्टूडेंट्स की एफर्ट को देखना है और उनको अप्रिशिएट करना है, उनको रिइंफोर्स करना है, पॉजिटिव करना है। अगर नहीं है तो नेगेटिव डज नॉट मीन कि आप उनको स्टॉप उनकी लर्निंग करें, उसका मतलब है कि आप उनको और ज्यादा वर्बली आप कर सकते हो, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आप अच्छा कर सकते हो। सो इंक्रीजिंग स्टूडेंट मोटिवेशन रिक्वायर्स क्या होती है, क्वालिटी इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी, कौन सी क्वालिटी की आप इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी यूज, इक्विटेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो स्ट्रैटेजी, और वो सारी स्ट्रैटेजी सबके लिए इक्वली आपके अंदर क्वालिटी, इक्विटी एंड मोटिवेशंस, इट विल क्वालिटी एंड इक्विटी, ये दोनों प्लस की जाए तो मोटिवेशंस बनती है। कितनी क्वालिटी की यूज करते हैं और कितनी आप इक्विटेबल हैं, यानी कि आप उसको यू आर गिविंग टू एवरीवन, नॉट टू ओनली वन। Not a day mostly student criticize not motivated. Yes, I'm agree with you, because if I really I wish to become that, I will be able to motivate my students. Aksa, I agree with you.
So nowadays, mostly student critics are not motivated. But I really try in my class ever to motivate even the student little participating. I ever try myself to motivate my students, so they will get acquainted to share their opinion. They share their ideas in the class. So one day they will be they be a good learners, and their hesitation will be removed. सो क्वालिटी में हम देखेंगे कि मोटिवेटिंग टू क्वालिटी क्या चीज होनी चाहिए. क्वालिटी आपने देखा क्वालिटी और इक्विटी इज इक्वल टू मोटिवेशन है. तो हम पहले क्वालिटीज को देखेंगे कि क्वालिटीज क्या चीज है. एस्टैब्लिश अ क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू द लर्नर. हाँ, आपने क्वालिटी आपने अपने आप को स्टूडेंट्स के क्लोज करना है, सर्कुलेट करना है. सर्कुलेट का मतलब है कि यू नीड गो टू ऑल द स्टूडेंट दोज आर इन द सेम क्राइटेरिया. प्लेस लर्निंग टूल अराउंड द रूम. आपने सारी क्लासरूम्स के अंदर वो सारी चीजों को उन सारी जगहों पर करना है. यानी कि अगर कोई क्वालिटी है तो आपने हर एक चीज की, अगर फिजिकल क्वालिटी की बात कर रहे हो या स्टूडेंट रिलेशनशिप की क्वालिटी की बात कर रहे हो या फिर साइकोलॉजिकल ओपिनियन की क्वालिटी की बात कर रहे हो, किसी भी एंगल में आप कर रहे हो, तो यू नीड टू यूज द फिजिकली. आपको यू नीड टू क्लोज टू योर लर्नर्स. आपने उनमें इक्वली सर्कुलेट करना है और उनके अराउंड प्लेस लर्निंग टूल्स अराउंड द रूम. सारी क्लास के तक आपकी वो सारी चीजें जानी चाहिए. क्रिएट अ क्लासरूम विद मोबिलिटी. यानी कि आपकी पूरी क्लास के अंदर वो एक कहते हैं कि वो आपके अंदर एक नजर आनी चाहिए कि एक मोबिलिटी, यानी कि पूरी क्लास की इन्वॉल्वमेंट हो कि वो एक से चीज दूसरे से, यानी कि पूरी मोबिलिटी नजर आई कि आपको वो चीजें पूरे रूम में मोबिलाइज हो रही हैं. सब मतलब जान रहे हैं, सबके पास नॉलेज आ रहा है, सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं. दैट इज, ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है. Quality communication on the personal level, addressing students, eye contact, call on all students. ठीक है. सो इसका मतलब है कि आपकी communications जो नहीं पर्सनल, नॉट पर्सनल, हर टीचर्स हर एक के साथ आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए. आपने अगर कोई आंसर करता है तो आपने उसको पर्सनली अप्रोच करके आपने स्टूडेंट को प्रॉपर्ली एड्रेस करना है, थैंक्स करना है जी. इफ यू समबडी वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस यू कैन. और आपने उनके साथ आई कांटेक्ट रखना है ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि आप उनको प्रॉपर सुन रहे हैं. ठीक है. ये सारी चीजों को आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है. सो यूज एंटिसिपेटरी सेट, रिलेट टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड ब्रीफ. ठीक है. ये चीजें भी आ जाती हैं, किसमें, क्वालिटी में आ जाती हैं. यूज इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल. आपने प्रेजेंटेशन जब दे रहे हैं तो आपने फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन टेक्निक लेक्चर मेथड में डिलीवरिंग इफेक्टिव लेक्चर में भी बताया था कि किस तरीके से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को करना है. गेस्चर्स आपके होने चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, वॉइस पिच, स्पीड, वॉल्यूम एंड मूवमेंट दैट इक्वली गिव द मैसेज टू द ऑडियंस. ठीक है. आपकी जो बॉडी है, आपके जो गेस्चर्स हैं, ये भी इटसेल्फ आप टेक्स्ट को वेल एक्सप्लेन कर रहे होते हैं व्हाइल यू आर स्टैंडिंग इन द क्लास. ठीक है. नॉट ओनली द रिटन और वर्बल और रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर वाचिंग द स्लाइड्स. It's a written word and spoken word. Instead, all the facial expressions, gestures, eye contact, voice, pitch, speed, volume, and movement, all considered in the quality, which motivating today learners. So another aspect of the quality is questioning strategy. Use wait time. कि अगर एक कर रहा है तो आप दूसरे के लिए टाइम दें. ठीक है. अगर आप एक सुने तो दूसरे को भी सुनने का मौका दें. ठीक है. Randomize your choice for response. आस्क हायर लेवल क्वेश्चंस. आप स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चन पूछें जो समझते हैं कि, जैसे मैंने हायर ऑर्डर को बताया जिसमें क्रिएट करने, मैंने एक बात बताई थी, स्टूडेंट से पूछे कि वो क्या बता रहे हैं, उनके मुताबिक ये चीज क्या हो सकती है. ठीक है. सिंथेसाइज करें, एवेलुएट करें और इसको एनालाइज करें और इसको एवेलुएट करें और इसके लिए फिर उसको चीजों को न्यू से क्रिएट करें. दैट इज कॉल्ड हायर लेवल क्वेश्चनिंग, जिसमें हम खुद से बनाते हैं, खुद से अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, व्हाट इफ. That type of question can explore your high level questioning. So questioning technique is continuous to assist student rephrase, clarify. आपने rephrase करना है, उसके alternative को देखना, paraphrase करना है, rephrase करना है, clarify करना है, give clue, hint देने हैं. ठीक है. कि क्या हो सकता है, क्या गलत है, क्या सही है. हाँ, फर्दर ये बात कर रहा है बच्चा, बाद में कभी स्टूडेंट सही से नहीं कर रहा तो आप उनको क्लू दे सकते हो, हिंट दे सकते हो. ठीक है. प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके साथ आप अपनी इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर सकते हो. आस्क फॉर एक्सपेंशंस ऑन द प्रीवियस गिवन आंसर्स. ठीक है. तो जो पहले आपने बताया था उसको भी थोड़ा सा और बता दें, यानी कि डिफरेंट टाइप से आप क्वेश्चन स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं.
नॉट ओनली कि सारी चीज़ों को आप ही जवाब दें, उनसे लें, उनके साथ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को जोड़ते जाएं ताकि स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को कह सके। आपने स्टूडेंट को असिस्ट करना है। असिस्ट करने का मतलब है कि आप उनकी बातों में बात उनको इशारा दे देना है, उनके साथ एडिशनल छोड़ी, हाँ ये बात है, इसका ये भी हो सकती है, ताकि वो अपनी स्टेटमेंट अपने आइडियाज में खुद को क्लैरिफाई करें। यूज इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटजी, इन्वॉल्वमेंट में इंडिपेंडेंट थिंकिंग देनी है आपने, वो खुद से करें। सम क्वेश्चन डिफरेंट रिस्पॉन्स, वोटिंग, पास द क्वेश्चन, कोलैबोरेटिव थिंकिंग, वर्किंग इन पेयर एंड स्मॉल ग्रुप। सो होमवर्क स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, प्रोवाइड फीडबैक, टाइमली फीडबैक देनी है, इन्वॉल्व आउटसाइड रिसोर्सेज इन असाइनमेंट, provide timely feedback, involve outside resources in the assignment, give choices in assignment, use applications assignment rather than wrote assignment। ठीक है, तो ये सारी, मेरा ख्याल टाइम खत्म हो चुका है। सो फिर हमारा आज मेरा कंप्लीट हो जाना था अगर हम टाइमली स्टार्ट कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ प्रॉब्लम इन कनेक्टिंग। सो टुडे आई विल फिनिश विद क्वालिटी, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद, so many slides are still remaining. So thank you, student. Okay, I will take your test. I will see the एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। Okay, students.